गुड गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। चलो, we have only 6 students in the class, so I'll wait for 2 more minutes and then we'll start. Okay, so कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था that was स्मिथ ट्रिगर. I hope सब लोगों को क्लियर है स्मिथ ट्रिगर? Yes? यस सर। यस सर। Okay, fine. चलो, anyhow, बाकी लोगों के ज्वाइन होने तक एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि लास्ट टाइम में क्या देखा था स्मिथ ट्रिगर में, and then we'll start today's topic, that is precision rectifier. Okay, fine. So this is how a Smith trigger looks like. Circuit is very simple. तो आपको एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे, it is a positive feedback configuration. Okay, Smith trigger is a positive feedback configuration. So this is the first and foremost point you need to understand. Okay, so इसलिए one more point should come into my mind, that output can be either plus VSAT or minus VSAT. Okay, so depending upon the output, the node, that is nothing but this node, whose voltage is VA. Okay, so this voltage at this node A will depend upon the output. If it is plus VSAT, हमने एक नाम दिया था voltage का, that is V1, and that is nothing but the upper trigger point. And if the output is minus VSAT, the output is V2. Nothing but the voltage at this node 2 is node A is V2, which is equal to lower trigger point. And only one voltage will be existing at a time. No, ऐसा नहीं होगा कि दोनों वोल्टेज एक साथ एग्जिस्ट करेंगे. बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी सर्किट, वो तो हमको पता है. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन. ओके, सो आपका जो आउटपुट होगा दैट विल फ्लक्चुएट बिटवीन प्लस Vsat एंड माइनस Vsat. एंड टू बी प्रिसाइज, आई जस्ट सेड दैट इट इज अ स्क्वायर वेव जनरेटर. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं द विड्थ ऑफ द पॉजिटिव हाफ एंड द विड्थ ऑफ द नेगेटिव हाफ आर वन एंड द सेम. Okay, and transition यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है? What are the instances at which the transition is happening? So you can see here the point A. So पहला जो transition हम देख रहे हैं that is at the point A, and दूसरा transition कहाँ पे है? At point B, and third transition is at point C. Is that clear? So once the transition is happening from plus Vsat to minus Vsat at point A, the voltage V1 will disappear. The only voltage that will exist is V2 now. V2 exists करेगा. Accordingly, we have seen this analysis, and this is nothing but the hysteresis loop जो हमने देखा था. See, hysteresis loop आपको तभी समझ में आएगा once you understand this input and output waveforms over here. अगर आपको ये समझ में नहीं आता है, अगर एग्जाम में आएगा तो सिंपली हम रंगोली बनाएंगे और कुछ नहीं होगा वहाँ पे. We won't be having any understanding. That's it. Simply hysteresis loop बनाएंगे, वहाँ पे भी drawing some arrows, V1, V2, that's it. Okay? अगर आपको ये समझ में आ गया, you need not remember anything. Simply आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, इसको आप justify भी कर सकते हो कि why it is happening so, why you are getting such a kind of a waveform over here. It's on this time to join. दिलीप कुमार आपके क्लास में नहीं है? हेलो, दिलीप कुमार बैठा. यस सर। ओके, यस सर। yes, okay, fine, thank you. He's a new student. Okay, so that was about your Smith trigger. So now let us see a precision rectifier. So we are adding a term rectifier. तो सबको पता है. If I ask you what is a rectifier, rectifier is something which converts AC to a DC quantity. AC quantity को हम DC quantity में convert कर सकते हैं using a
rectifier, but we are adding a term over here that is nothing but a precision rectifier. आपको क्यों लगता है कि हम यहाँ पे precision term add कर रहे हैं? You will understand after this now. एक छोटा सा discussion होगा. After that you will understand why I am calling this as a precision rectifier. Okay. So before discussing about this precision rectifier, एक बार मैं rectifier draw करूँगा, फटाफट आप उसका output बता देना कि output क्या आएगा उस rectifier का, so that we can continue with this precision rectifier. This is what we have in the input, a sinusoidal waveform. Okay, so this is this Vs, okay, which is equal to Vm sine omega t, and whose Vm is equivalent to some 100 millivolts. Okay, so let this be some 1 ohm. So this is nothing but my Vs. Now, yes, आप लोग बता दीजिए इसका आउटपुट वेवफॉर्म कैसा आएगा? What is the output waveform that you can get here? Yes, कौन सा सर्किट है? Is it a half wave rectifier or a full wave rectifier? The rectifier that I have drawn here. Half wave है या full wave rectifier है? Half wave rectifier. Okay. So what is the output waveform that I can have across the load? Nothing but इसके across अगर मैं CRO connect करता हूँ, so that is nothing but my V0. So V0 का waveform कैसा होगा? फटाफट बता दीजिए. So what about the output voltage? पता नहीं चला. Sorry? 0 to pi, then 2 pi to 3 pi. Okay, 0 to pi, positive half आएगा. Yes? Yes, sir. Okay, उसके बाद में 0. उसके बाद में फिर से. So nothing but positive half में मेरा ये वेवफॉर्म मुझे मिलेगा, नेगेटिव हाफ में इट विल बी इक्वल टू 0. क्या सब लोग का सेम आंसर है या किसी को कंफ्यूजन है इसमें भी? हेलो हेलो, प्लीज डू रिस्पॉन्ड. नो सर, ये सबके लिए सबका सेम आंसर. Yes, sir, सेम आंसर है. चलो, वेरी गुड, फाइन. इफ आई वाज इन योर प्लेस, इवन मैं भी यही आंसर करता, अनलेस अंतिल एक चीज को मैं फोकस नहीं करता. ठीक है? एंड व्हाट वाज दैट थिंग? इज दिस थिंग. इस चीज पे अगर मैं फोकस नहीं करता तो आई वुड हैव गिवन द सेम आंसर दैट. सो दिस इज अ वेवफॉर्म दैट वी शुड गेट इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर. अब मुझे बताइए, अगर इस चीज पे मैं फोकस करता तो क्या मैं ये सेम आंसर देता या कुछ मैं अलग आंसर देता? आप बताइए. What is the answer that you would give if you focus on this one, that is 100 millivolt, which is the peak value? $100 millivolt मतलब roughly I can say it is 0.1 volts. 0.1 volt बोल सकते हैं इसको? Hello? Yes? 0.1. Okay, fine. 0.1 volt होता है peak value. Peak value मतलब ये है peak. So this is nothing but the peak value what I mean. So yes, बताइए. अगर चलो आपने इस पॉइंट पे फोकस नहीं किया होगा, मैं बता रहा हूँ कि now focus on this value and just tell me what is the output waveform that you will expect here. Output will be 0 voltage line. This output will be equivalent to 0 voltage line. चलो, fine, very good. So अगर आउटपुट हम ड्रॉ करते हैं तो मैं इस पे मर्ज करके ड्रॉ कर देता हूँ. इनपुट पे मर्ज कर रहा हूँ. सो आउटपुट जो होता, so that will overlap with my x axis. So that will overlap with my x axis. Yes, please आप बता सकते हैं कि ये 0 क्यों होगा? Why this will be equal to 0? So is red color draw? Yes, yes, very good. बस वही चीज आपको फोकस करना था, that minimum 0.1 volt is required so as to rectify, nothing but so as the diode to come. लेकिन यहाँ पे इनपुट जो हम ले रहे हैं that is 0.1 volt. Sorry, 0.1 volt जो कि पीक वैल्यू है, डेफिनेटली इसका RMS होगा डेफिनेटली कम ही आएगा. ठीक है?
तो क्या यहाँ पे इस तरीके के वेवफॉर्म को क्या मैं रेक्टिफाई कर सकता हूँ? द आंसर इज नो, आई कैन नॉट रेक्टिफाई साइनसॉइडल वेवफॉर्म। ये साइनसॉइडल वेवफॉर्म है, इस साइनसॉइडल वेवफॉर्म को मैं रेक्टिफाई नहीं कर सकता यूजिंग माय ऑर्डिनरी डायोड दैट आई हैव। दैट मींस अगर आपका रिक्वायरमेंट ये है कि साइनसॉइडल वेवफॉर्म है एंड अगर आपका रिक्वायरमेंट ये है कि ये मुझे मिलना चाहिए, तो क्या आपको मिलेगा यूजिंग दिस? नो, यू कैन नॉट गेट दिस आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म। द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म दैट यू कैन गेट out of this circuit is this line which is overlapping with my x axis. Is this clear? So ये चीज आपको पता होना चाहिए। So यहाँ पे हमने एक टर्म ऐड किया that is precision rectifier. That means using operational amplifiers हम ये जो small voltages हैं इनको भी हम rectify कर सकते हैं। Rectify in the sense I can get this kind of waveform. Is this clear? Using op amps, we are going to develop a rectifier which can even rectify this small voltage. इतना small voltage, इतना कम voltage को भी ये rectify करके मुझे ये waveform दे सकता है. So this is what we are going to develop using an op amp. ठीक है? So as I told you, op amp के जो है, first हम discuss करेंगे basics, and basics के बाद में आएंगे applications. Applications in the sense, rectifier is an application. Rectifier is an application which is developed using an op amp. Is that clear? So this precision rectifier is one of the applications of your op amp. Okay. So let us see कि हम एक op amp use करके rectifier कैसे हम develop कर सकते हैं. Okay. So let us see now. So circuit looks very easy. ज़्यादा कुछ complicated नहीं है circuit. अच्छा, इस सर्किट को आप देखिए एक बार। This is VI, input voltage. But suppose if I am giving some pulse over here, एक pulse मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, okay? And the peak of this pulse is same 100 millivolt जो हमने previous section में देखा था। इसका जो peak value है that is 100 millivolt. सिर्फ मैं यहाँ पे सिर्फ positive half draw कर रहा हूँ। Just focus on the positive half. Focus on positive half, negative half, and यहाँ पे diode कहाँ पे add करना, all these things we'll see. Okay? So आपको जो output जो apply करना है that is across the load resistance, ये मैंने R भी connect कर लिया। चलो, this is the resistance, load मैंने connect कर लिया। अब मुझे बताओ कैसा सर्किट है ये? आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा आपको? आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा एंड आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसा होगा ये बताइए पहले। Slowly we will build a rectifier. Step by step we'll build a rectifier. पहले आप इस सर्किट का मुझे आउटपुट बताइए। इस सर्किट का आउटपुट क्या है? How does this circuit looks like? कैसा दिख रहा है आपको सर्किट? पहले बताइए मुझे एक बार। This was one of the applications जो हमने डिस्कस किया था। This was one of the applications. Even someone in your class also asked, sir, what is the use of this application? इसका रोल क्या है? I told you that there are few other applications where we'll be using this application so as to build those applications. Okay. So yes, बताइए how does this circuit looks like? Yes, please. Vaibhav, Rajneesh, Swatanshu, Sanjay. See, I know very few names. If I doesn't take बाकी लोग का नाम, that doesn't mean कि बाकी लोगों से नहीं पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ मैं। नहीं पता तो बता दीजिए, सर नहीं पता, we'll proceed then. Hello, am I audible? नहीं पता सर। सी, अगर आप चैट बॉक्स में लिखोगे यहाँ पे अनलेस एंड अनटिल मिनिमाइज दैट, मुझे दिखेगा नहीं यहाँ पे। ओके, सो प्लीज डू रिस्पॉन्ड। नो सर, एटलीस्ट अगर आप माइक ऑन करके बोल देंगे कि नहीं पता, दैट इज फाइन। चैट बॉक्स में लिखेंगे मुझे पता नहीं चलेगा। आई विल हैव टू मिनिमाइज दिस अगेन।
सुनाई तो दे रहा है ना सब लोग को, या ऑडियो में कोई दिक्कत आ रही है? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, ठीक है, चलो। तो इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग आई विल अंडरस्टैंड दैट आपको नहीं पता। चलो, नहीं पता, चलो। So is it a closed loop configuration or open loop configuration? Is it a closed loop configuration Closed loop. or a closed loop configuration? Negative feedback or positive feedback? Negative feedback. Negative. नेगेटिव फीडबैक है और मेरा क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, सो क्या मैं वर्चुअल ग्राउंड लगा सकता हूँ? कैन आई अप्लाई द कांसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड? एंड वर्चुअल ग्राउंड का कांसेप्ट क्या होता है? v plus is equal to v minus. सो यहाँ पे जो भी v plus है, दिस इज नथिंग बट माय v plus and this is nothing but v minus. so v plus and v minus दोनों इक्वल होंगे and v plus किसके बराबर है? इनपुट के बराबर है, ठीक है। v plus is equal to input voltage and what is the concept of virtual ground says v plus is equal to v minus. so v minus क्या हो जाएगा? v minus will be equal to v input and what is vi? v minus कहाँ पे connected है? it is directly connected to my output terminal over here. so can I say that v minus is equal to v naught and by using these two I can see that output is equivalent to input. Output is equivalent to input and जो हमारा जो ये एप्लीकेशन है इसका जो नाम हमने देखा था that was Voltage follower. yes, that's it. That is nothing but a voltage follower. Output will be following the simply input voltage. Voltage follower. Yes, this was the initial application में जब हमने डिस्कस किया था तब उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि दिस इज अ वोल्टेज फॉलोअर एप्लीकेशन जहाँ पे इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। अब मुझे एक चीज बताइए यहाँ पे, इफ दिस इज 100 मिलीवोल्ट या 25 मिलीवोल्ट, डज इट मैटर कि यहाँ पे आउटपुट जो मिल रहा है कि वो कुछ अलग होगा? सिर्फ नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। अगर नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन है तो इस पर्टिकुलर नोड पे जो वोल्टेज होगा दैट विल बी इक्वल टू माय सिंपली इनपुट। अगर इनपुट में मैंने ये पल्स दिया है तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा? सेम वही पल्स मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताइए एक बार। हेलो? Yes, sir. Will I be getting the same pulse? Yes, I'll be getting the same pulse. Okay, so this is what we should know. Okay, so let's start with this precision rectifier now. So the important thing here is the placement of diode, and diode को कहाँ place करना है? That is what we should know, and also we should understand how this diode is operating. This is input. This is a diode behind it. यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं load and resistance, which is nothing but here R. Is this clear? So what is this terminal? This terminal is nothing but my V naught. Clear? ये जो टर्मिनल है, क्या टर्मिनल है? इस टर्मिनल को हम बोल रहे हैं V naught. So what is this? This is nothing but the output terminal. Is this clear? Hello? Yes, sir. Fine. Fine. The output terminal. Okay. तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, क्या ये आउटपुट टर्मिनल ऑप एम्प का भी आउटपुट टर्मिनल है या आउटपुट ऑप एम्प का आउटपुट टर्मिनल कुछ और है? द आंसर इज द ऑप एम्प का जो आउटपुट टर्मिनल है दैट इज हियर. So this is nothing but VO dash, which is the output terminal of an op amp.
ये आउटपुट टर्मिनल कहां पर है, जहां पे हम लोड कनेक्ट कर रहे हैं। Is this clear? But what is the actual output terminal of an op amp? This is the output terminal of an op amp. Is this clear? Output terminal तो यही होता है, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया है, डायोड कनेक्ट किया है, और उसके बाद में हम कनेक्टिंग द आउटपुट. So definitely this is not the output terminal of op amp. This is the output terminal of the circuit across which I am connecting my load. And if I'm asked you what is the output terminal of op amp, this V0 dash, the voltage I'll be getting at this node is nothing but the output voltage of an op amp. Is this clear? So this is the output terminal of the entire circuit. इस पूरे सर्किट का आउटपुट टर्मिनल है. ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है. Clear? Because I have seen students getting confused the output terminal of a circuit and the output terminal of an op amp. Is this clear? Yes sir. चलो okay fine. चलो आप बताइए. So if I'm giving a positive half, अगर मैं यहाँ पे positive half दे रहा हूँ, separately हम discuss करेंगे. Positive half and negative half को दोनों को हम अलग अलग से हम separately हम discuss करेंगे. Okay. Now the question is, what happens in the positive half? Positive half में क्या होगा यहाँ पे? What happens in the positive half? What is the output you will get? किस तरीके से इसको आप एनालाइज करेंगे? Because we have the basic understanding of operational amplifiers, right? Virtual ground का concept हमें पता है, डायोड कैसे वर्क करता है ये भी हमें पता है. Okay, everything is known to us. Now the question is, how do you explain the working of this circuit? I'm just talking about the positive half, negative half के बारे में हम discuss करेंगे. चलो okay, let me tell you. So when the input is zero, मतलब इनपुट मैंने अप्लाई नहीं किया है, इनपुट मैंने अप्लाई नहीं किया है, मान लो इनपुट इज नॉट अप्लाइड टू दिस पॉजिटिव टर्मिनल, तो उस केस में आउटपुट तो जीरो मिल ही रहा होगा हमको. यस, इस नोड पे वोल्टेज कितना होगा, जीरो होगा. यस, हाँ या ना बताइए एक बार प्लीज. जब इनपुट में अप्लाई नहीं कर रहा हूं, इस नोड पे आउटपुट नोड पे कितना होगा वोल्टेज, दिस विल बी इक्वल टू जीरो. जब ये जीरो होगा तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इस नोड पे भी वोल्टेज जीरो वोल्ट्स होगा. कैन आई से दिस? यस सर. राइट. Yes, sir. जब इनपुट मैंने अप्लाई नहीं किया है तो आउटपुट जीरो होगा. एंड मैं देख रहा हूं कि नेगेटिव टर्मिनल जो है आउटपुट से कनेक्टेड है, नथिंग बट आउटपुट टर्मिनल ऑफ द सर्किट से कनेक्टेड है. दैट मींस दिस टर्मिनल इज आल्सो एट जीरो वोल्ट्स. ये जीरो वोल्ट पे कनेक्टेड है. ठीक है. नाउ आई एम अप्लाइंग द इनपुट. अभी मैं इनपुट अप्लाई कर रहा हूं. इनपुट अप्लाई करते क्या हो गया, दिस इज द पॉजिटिव हाफ, राइट. पॉजिटिव हाफ में इनपुट में अप्लाई कर रहा हूं, पॉजिटिव हाफ में इनपुट में अप्लाई कर रहा हूं. नाउ आउटपुट क्या मिलेगा बताइए यहाँ पे. आउटपुट इन द सेंस V0 डैश क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे. व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ V0 डैश? विल इट बी A टाइम्स V प्लस माइनस V माइनस, क्या यही होगा? हाँ या ना बताइए एक बार. हेलो. यस सर. यस सर. यस सर. So मुझे बताइए, what about the value of V0 dash? Will it be a very large value? Will it be very large value? Yes or no? ज्यादा होगा या नहीं होगा बताइए एक बार. Yes Will sir. it be a positive quantity? Yes, it will be a positive quantity, and it is definitely 0.7 से ज्यादा ही होगा. Definitely it will be greater than 0.7. तो अब मुझे बताइए, जैसे मैंने पॉजिटिव हाफ अप्लाई किया, यहाँ पे जो वोल्टेज अवेलेबल था दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू. अब मुझे बताइए, बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव वैल्यू क्या ये मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा या नहीं होगा? बिकॉज इस नोड पे जो वोल्टेज है दैट इज 0 वोल्ट्स, एंड यहाँ पे जो वोल्टेज है दैट इज पॉजिटिव वोल्टेज है which is large enough so as to drive this diode. So my question is, will my diode be in forward bias condition or not? फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा. यस सर. सो क्या मैं इसको शॉर्ट सर्किट कर सकता हूं? कैन आई शॉर्ट सर्किट में डायोड ओवर हियर? यस सर. यस सर. डायोड को मैंने क्या कर दिया है, शॉर्ट सर्किट कर दिया. ओके. अब मुझे बताइए आउटपुट वोल्टेज अब क्या मिलेगा. नथिंग बट वोल्टेज एट दिस टर्मिनल, नथिंग बट आउटपुट टर्मिनल ऑफ द सर्किट. यहाँ पे वोल्टेज अब कितना मिलेगा बताइए मुझे एक बार. ये था जब इनपुट जीरो था, दिस वाज जीरो व्हेन input was equivalent to 0. Okay, now input मैंने अप्लाई कर दिया. because of this the voltage at this
V0 dash was positive because of which डायोड स्टार्टेड कंडक्टिंग, तो उसकी वजह से मैंने डायोड को शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब मुझे बताइए ये सर्किट आपको कैसे दिख रहा है, हाउ डज दिस सर्किट लुक्स लाइक? यस प्लीज आप बताइए ये सर्किट कैसा दिख रहा है आप लोगों को अभी? वोल्टेज फॉलोअर। It is looking like a voltage follower circuit. It is looking like a voltage follower circuit. तो अब मुझे बताइए यहाँ पे अगर मैं कितना भी वोल्टेज अप्लाई कर लूं, यहाँ पे मैं 25 मिली वोल्ट्स अप्लाई करूँ या 100 मिली वोल्ट्स अप्लाई करूँ, क्या सेम वोल्टेज मुझे आउटपुट में मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताइए एक बार। Yes, sir. Is this clear? So this is what will happen for the positive half. तो हम अलग अलग करके डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव हाफ के अलग से डिस्कस करेंगे, नेगेटिव हाफ के अलग से डिस्कस करेंगे। So first initially we are discussing about the positive half. So positive half का डिस्कशन आप लोगों को क्लियर है या नहीं बता दीजिए एक बार मुझे। पॉजिटिव हाफ का डिस्कशन आप लोगों को क्लियर है या नहीं बता दीजिए। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, इनिशियली जब इनपुट जीरो होगा तो आउटपुट ऑफ दिस सर्किट विल बी एट जीरो एंड वी कैन सी दैट दिस इज कनेक्टेड टू दिस नेगेटिव टर्मिनल। सो बिकॉज ऑफ दिस ये भी जीरो वोल्टेज पे होगा। एंड नाउ when I apply the voltage, so this is the output that I can get at this V0 dash, so which is a positive quantity because of this diode will conduct. जब डायोड को मैं शॉर्ट सर्किट कर दूंगा ये बन जाएगा वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। वोल्टेज फॉलोअर सर्किट मतलब नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन है। I can apply the concept of virtual ground. Virtual ground का concept apply करेंगे, V plus is equal to V minus, and V plus किसके बराबर है? V in के बराबर है, तो V minus भी क्या हो जाएगा? V in के बराबर हो जाएगा। एंड ये V in किससे कनेक्टेड है? V नॉट से कनेक्टेड है। सो ऑब्वियसली V नॉट भी क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्विवेलेंट टू माय इनपुट वोल्टेज। आई होप दिस इज क्लियर। यस Yes, sir. ओके फाइन। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन नेगेटिव हाफ। यस आप लोग बता सकते हैं कि नेगेटिव हाफ में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन द नेगेटिव हाफ? So this is the input, okay, this is negative and this is positive. Diode, this is output of the circuit, not the output terminal of the op amp, that is the output terminal of the circuit, the entire circuit, and this is the load resistance. ठीक है, connect this. अब बताइए, now let us take the negative half. अगर मैं नेगेटिव हाफ अप्लाई करता हूं तो अभी क्या होगा इस सर्किट में? So if I am applying the negative half, what happens to this circuit? सेम वही स्टेप्स आप फॉलो करेंगे जो स्टेप्स मैंने आपको प्रीवियस पॉजिटिव हाफ के लिए बताए थे, राइट? सो यहाँ पे जो स्टेप्स मैंने बताया था उसी स्टेप्स को आप यहाँ पे फॉलो करोगे वन बाय वन सो एज टू गेट द फाइनल कंक्लूजन कि व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म यू कैन हैव। सी आई एम टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने एक्चुअल सर्किट आपको नहीं बताया अभी। सो दीस आर द पार्ट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड सो एज टू अंडरस्टैंड द फाइनल सर्किट। समझ में आ रहा है? सो प्लीज आप बताइए अभी इस सर्किट का वर्किंग आप लोग समझाइए। One second, I'm holding it. Am I audible now? Hello? Hello? Yes, please बता, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? Okay, Yes, sir. ठीक है। थोड़ा काम आ गया था, so I had to mute your class. हाँ जी।
और यस बताइए व्हाट हैपेंस इन नेगेटिव हाफ? नेगेटिव हाफ में क्या होगा बताइए? पहला स्टेप हमने क्या लिया था? इनपुट अप्लाई नहीं किया था। इनपुट जब मैं अप्लाई नहीं करूंगा तो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट जीरो होगा। यस, यही बोला था मैंने प्रीवियस पॉजिटिव हाफ के लिए भी। व्हेन दिस इज जीरो, व्हाट अबाउट दिस वोल्टेज नाउ? व्हाट अबाउट दिस वोल्टेज? कैन आई कंसीडर दिस वोल्टेज टू बी 0 volts? यस, Yes, sir. Yes, sir. okay, and now I'm applying the input. अभी मैं input apply कर रहा हूँ. Okay, once I knew that this voltage is 0, now I'm applying the voltage. When I apply the voltage, what about this V0 dash you will be getting over here? Nothing but the output of an op amp. क्या मिलेगा आपको? V0 dash is nothing but A times V plus minus V minus. V minus की वैल्यू कितनी है? What about the value of V minus? 0 है? Yes. So it is A times V plus. क्या यहां तक समझ में आया आप लोगों को? अब मुझे बताइए ये V0 डैश जो होगा, will it be a positive quantity or a negative quantity? V0 डैश जो होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? V0 dash, will it be a positive quantity or a negative quantity? Yes, it will be a negative quantity because यहाँ पे जो मेरा V plus है जो कि नेगेटिव है, so this will be A times the negative quantity, so this will be a negative value. Okay, and A जो होता है बहुत ज्यादा होता है, A जो होगा बहुत ज्यादा होगा। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे वोल्टेज आपको कितना मिलेगा? V0 डैश के पास आपको वोल्टेज कितना मिलेगा? V0 डैश के पास वोल्टेज क्या मैं बोल सकता हूँ कि इट इज माइनस V sat? कैन आई से दैट इट इज माइनस V sat? क्योंकि हमारे जो वैल्यूज होंगे या तो प्लस V sat होगा या तो माइनस V sat होगा। नेगेटिव क्वांटिटी व्हिच इज वेरी लार्ज, कैन आई से दैट इट इज इक्वल टू माइनस V sat? हाँ या ना बताइए एक बार। Yes, sir. इट इज Yes, sir. माइनस V sat। ओके, मान लेते हैं कि माइनस V sat मेरा 15 वोल्ट है, माइनस 15 वोल्ट्स। ओके, एंड ये जो है 0 वोल्ट्स है। तो अब क्या मेरा डायोड कंडक्ट करेगा? विल माय डायोड कंडक्ट नाउ? विल माय डायोड कंडक्ट नाउ? क्या मेरा डायोड कंडक्ट करेगा इस केस में? यहाँ पे जो वोल्टेज है दैट इज माइनस 15 वोल्ट्स एंड यहाँ पे जो वोल्टेज है दैट इज 0 वोल्ट्स। माय डायोड विल नॉट कंडक्ट। सो कैन आई से दैट दिस इज एन ओपन सर्किट? क्या इसको बोल सकता हूँ कि ये ओपन सर्किट है? Yes, sir. यस, नेगेटिव हाफ में डायोड ओपन सर्किट हो गया। तो अब मुझे बताइए आउटपुट कितना होगा? आउटपुट 0 ही रहेगा या नहीं रहेगा? यस, बिकॉज़ ये तो ओपन सर्किट हो गया। Yes, sir. 0. This is open now. So what happens to my output now? My output remains at 0 or not? Yes? Yes, sir. Yes, sir. Okay. आउटपुट मेरा 0 ही रहेगा। तो अब बताइए फॉर द एंटायर हाफ, फॉर द एंटायर पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ, अगर मैं वेवफॉर्म यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो कैसा वेवफॉर्म आपको देखने को मिलेगा? What is the kind of waveform that you can see here? पॉजिटिव हाफ में will it be conducting? पॉजिटिव हाफ में कंडक्ट करेगा? यस। Yes, sir. Yes, sir. नेगेटिव हाफ में? 0. 0. नेगेटिव हाफ में दिस विल बी इक्वल टू 0। पॉजिटिव हाफ में फिर से कंडक्ट करेगा? यस। नेगेटिव हाफ में अगेन इट विल बी इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है? सो हमारा रिक्वायरमेंट क्या था? हमारा रिक्वायरमेंट था ये वेवफॉर्म। If I'm given a sinusoidal, I should get this kind of waveform. Even though the voltage is very small, even though the voltage is very small. अब मुझे बताइए यहाँ पे कोई वोल्टेज का कंस्टेंट है क्या कि इतना वोल्टेज मिनिमम होना चाहिए such that my voltage follower circuit should work? ऐसा कोई कंस्टेंट नहीं है। Even though the input voltage is some 20 millivolts, 20 millivolts अगर इसका peak value है, this 20 millivolts will be available across the output terminal. Is this clear? But that is not possible when I have a diode circuit. That is not possible when I have a diode circuit because diode, for the diode to conduct, a minimum voltage that is required is 0.7 volts. Without this cut-in voltage, definitely my diode will not get into conduction. But that overcome
has been overcome using this operational amplifier. Hence, we are calling this rectifier a precision rectifier. Precisely, it is rectifying. Even though the voltages are very small, even though the voltages are very small, it is rectifying it. Nothing but half wave rectification यहाँ पे हो रहा है. So this is the output voltage waveform that I can get using my op amp. क्या है समझ में आया नहीं आया बताइए आप लोगों को. इसको हम प्रेसिशन रेक्टिफायर क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ सिंपली कॉलिंग इट एज अ रेक्टिफायर. आई होप समझ में आया आप लोगों को. Yes, sir. ओके Yes, sir. सी यहाँ पे जो हमने वेवफॉर्म ड्रॉ किया, दिस इज कंप्लीटली एन आइडियल वेवफॉर्म जो हमने ड्रॉ करते हैं, बट देयर इज अगेन अ स्मॉल कैच ओवर हियर. सो व्हाट इज दैट कैच इज, यहाँ पे जो आउटपुट है दैट इज माइनस वी सैट है. यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगा पॉजिटिव हाफ में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसकी वजह से आपका डायोड कंडक्ट करने लग जाएगा, दैट विल बी प्लस वी सैट. तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन पीरियड है from plus V sat, sorry, from minus V sat to plus V sat and plus V sat to minus V sat, it will take some time. It will take some time. ऐसा नहीं कि instantaneously it will happen. Instantaneously it will happen. आपको याद होगा स्लू रेट के बारे में हमने डिस्कस किया था. वोल्टेज बिल्डअप होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, या वोल्टेज को ड्रॉप होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. If you remember slew rate is equal to some 741 IC plane 0.5 volts per microsecond. If you people remember, याद है होगा आप लोगों को. Yes. तो यहाँ पे तो हमने ड्रॉ कर दिया कि सिंपल साइनसॉइडल वेवफॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज यू विल बी गेटिंग अ स्लाइट डिस्टॉर्शन ओवर हियर. यू विल बी गेटिंग अ स्लाइट डिस्टॉर्शन इन द वेवफॉर्म. नो डाउट आपको ऐसा ही वेवफॉर्म ही मिलेगा, बट देयर विल बी अ स्लाइट डिस्टॉर्शन अनलाइक द आइडियल वेवफॉर्म दैट आई हैव ड्रॉन ओवर हियर. Okay, so that is one of the problem that we face in this rectifier, in precision rectifier. So to overcome this problem, there is something called as a modified precision rectifier. Is this clear? Is the problem clear? आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे माइनस वी सैट है नेगेटिव हाफ में, लेकिन जैसे ही नेगेटिव हाफ के पॉजिटिव हाफ आएगा, ये माइनस वी सैट से प्लस वी सैट पे जाना चाहिए, तभी जाके तो डायोड ऑन होगा, तभी तो डायोड ऑन होगा. तो उस टाइम तक हल्का सा मुझे डिस्टॉर्शन मिल सकता है आउटपुट में, कि एज इट इज जो हमने साइनसॉइडल जिस तरीके से ड्रॉ किया है वैसा वेवफॉर्म नहीं मिलेगा. सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम देयर इज वन मोर रेक्टिफायर कॉल्ड एज द मॉडिफाइड प्रेसिशन रेक्टिफायर. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द मॉडिफाइड समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Modified precision rectifier. So let us see how does this circuit looks like. पॉजिटिव हाफ के लिए भी हम नहीं डिस्कस कर लेंगे सर्किट के साथ साथ. एंड मैं चाहता हूँ कि नेगेटिव हाफ के लिए आप could try करें, because I have some work in the department. So I'll do one thing. I'll discuss about the positive half, and then I will stop. I want you to analyze it for the negative half. The negative half में circuit को हम कैसे analyze करेंगे? यहाँ पे we'll be using two diodes. One is D1 and one is diode D2. This is R, and this is also R over here. So this is the input voltage, and this is the output voltage of the circuit, not the output terminal of the not the output terminal of the op amp. It is the output terminal of the circuit. Op amp का output terminal कहाँ पर है? This is the output terminal of your op amp. ठीक है? So what happens in the positive half? Positive half में कैसे आप इसको analyze करेंगे? Yes, बताइए. What is that will happen in the positive half?
We will be analyzing this circuit bit differently by considering few assumptions. उस assumption एक assumption को लेके हम चलेंगे, अच्छा ये डायोड हमारा कंडक्ट कर रहा है, तो इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। हम देखेंगे कि जो assumption हमने लिया है उस assumption वो assumption सही है या नहीं as far as circuit working is concerned, ठीक है। अगर सर्किट का वर्किंग प्रॉपर्ली उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब जो assumption हमने लिया है वो assumption गलत है। So that means that particular diode is conducting or not conducting, जो भी हमने assumption लिया है। So यहाँ पे प्लीज फोकस करें। So जो भी हम assumption लेंगे as far as this modified precision rectifier is concerned, so that assumption will be पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ के लिए, दोनों के लिए ये assumption सेम रहेगा। That is assumption is D1 is on. Is this clear? समझ में आ रहा है assumption हम क्या ले रहे हैं? So let us see what happens in the positive half. Let us see what happens in the positive half. Yes, बताइए आप लोग positive half में क्या होगा? डायोड D1 को मैंने क्या कंसीडर कर लिया है? डायोड D1 को मैंने कंसीडर कर लिया है कि this is conducting. This is conducting, nothing but D1 is on. D1 is on. Okay, D1 is on. Yes, अब बताइए एक बार मुझे, जब D1 ऑन हो जाएगा, so this is a short circuit, तो क्या उस केस में मेरा जो ऑप एम्प है, क्या वो नेगेटिव फीडबैक कनेक्टेड हो गया या नहीं हो गया? बताइए एक बार। ये आउटपुट टर्मिनल है ऑप एम्प का, ये ऑप एम्प का इनपुट टर्मिनल है। क्या यहाँ पे आपको कोई नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अगर डायोड ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो यस सर। ओके, यहाँ पे D1 अगर ऑन हो जाता है तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको? दैट इज नेगेटिव फीडबैक। अगर नेगेटिव फीडबैक हो गया तो एक चीज मुझे बताइए, क्या आप अज्यूम कर सकते हो? कैन यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड? वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड? V plus is equivalent to V minus. Yes, what is the potential of V plus? V plus का वोल्टेज कितना है? 0 वोल्ट्स है, तो यहां पर भी वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0 वोल्ट्स हो जाएगा, आया ना? हेलो, यस सर। okay, so this will be 0. Okay, fine. एक और चीज forgot to tell you. So this is the load resistance. So this is the load resistance. एक चीज मुझे बताओ, forget about these two steps that I told you. उससे पहले एक और स्टेप आएगा, that is when the input is not applied, what about the value of the V0? V0 की वैल्यू कितनी होगी? जब इनपुट मैंने अप्लाई नहीं किया, V0 की वैल्यू कितनी होगी? V0 will be equivalent to 0. सर 0। Yes, अगर V0 0 हो गया तो इसको आप ध्यान में रखें, V0 0 है। Okay, V0 0 है एंड यहाँ पे जो पोटेंशियल है दैट इज 0 बिकॉज ऑफ द नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे बताइए कैसे आप इसको एनालाइज करेंगे? हाउ इज दैट यू आर गोइंग टू एनालाइज दिस सर्किट? यहाँ से जो हम 2-3 स्टेप्स लिखेंगे, दैट दोस 2 स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, नाउ सी कंसीडर कौन से 2 स्टेप्स जो बोल रहा हूँ। ये 0 वोल्ट्स है, डायोड कंडक्ट कर रहा है, तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा बताइए एक बार मुझे। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? कंसीडर अ डायोड, डायोड को कंसीडर करो, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है। डायोड को कंडक्ट करने के लिए मिनिमम कितना वोल्टेज चाहिए और डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है? व्हेनेवर द डायोड इज कंडक्टिंग, व्हाट अबाउट द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड? वोल्टेज अक्रॉस द डायोड कितना होता है? Whenever the diode is conducting, what is the voltage across the diode? Isn't it 0.7 volts? यस सर। 0.7 volts होता है नहीं, तो यहाँ पे अगर 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे अगर 0 वोल्ट है, can I say that यहाँ पे जो वोल्टेज है it is minus 0.7 volts because VA minus VK should be equivalent to 0.7 जो कि मेरा कटिंग वोल्टेज होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो वोल्टेज है, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा दैट इज minus 0.7 volts? Can I say this or not?
यस, समझ में आ रहा है आप लोग को? हेलो, यस सर। प्लीज बता। ओके फाइन, तो यहाँ पर वोल्टेज -0.7 हो गया। इफ द वोल्टेज हियर इज -0.7, व्हाट विल हैपन टू द स्टेट ऑफ द डायोड? डायोड क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन टू द डायोड? यहाँ पर 0 -0.7 है, यहाँ पर 0 वोल्ट है, तो डायोड क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन टू द डायोड? क्या डायोड ओपन सर्किट होगा या नहीं होगा? Yes, sir. डायोड हो जाएगा मेरा ओपन सर्किट। डायोड विल बिकम एन ओपन सर्किट। ये हो गया आपका ओपन सर्किट में, डायोड हो गया आपका ओपन सर्किट। सो जब डायोड आपका ओपन सर्किट हो गया, अब मुझे बताइए व्हाट विल हैपन। डायोड ओपन सर्किट हो गया तो अब बताइए क्या बता सकते हैं आप? व्हाट अबाउट द आउटपुट वोल्टेज नाउ? जीरो। आउटपुट तो ये है ना, आउटपुट 0 आ रहा है। अच्छा, आउटपुट 0 आ रहा है, कैसे आ रहा है देखते हैं। Fancy here. So what happens is we consider this diode to be conducting, ठीक है? So मैंने बोला था कि ये पॉजिटिव हाफ के लिए, ये पॉजिटिव हाफ के लिए, पॉजिटिव हाफ के लिए, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट। 0 वोल्ट मतलब यहाँ पर भी 0 वोल्ट ही होगा, एंड यहाँ पे जो वोल्टेज है दैट इज ऑल्सो 0 वोल्ट्स। यस, इनिशियल इट इज 0 वोल्ट्स। 0 वोल्ट्स यहाँ पर भी है और 0 वोल्ट्स यहाँ पर भी है। सो हमारा जो करंट जो फ्लो करेगा दैट हैज टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन। दिस इज V माइनस एंड दिस इज 0। सो डेफिनेटली करंट कैसे फ्लो करेगा? So definitely current has to flow in this direction because ये V input है और ये 0 volts. So definitely current will flow in this direction. And this is 0, this is 0. So current flowing through this resistance R will be equivalent to 0. इसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अब पूरा करंट जो फ्लो करेगा D1. Okay, and ये जो पूरा करंट का पाथ है, it has to go through diode D1, and that is possible only if my diode is on, and that is possible only if my diode is on. So that means जो condition हमने लिया था, the assumption that we have taken that diode is on, that is getting satisfied now. That is getting satisfied now here. Here, input से करंट कहाँ पे आएगा? इस नोड पे जाएगा. And it has got two paths for the current to flow. Either it can flow through the resistance R, or either it can flow through the diode D. But it cannot flow through the resistance R because this is at 0 and this is at 0. So definitely जो current जो flow करेगा, definitely current has to flow through my diode only. And obviously इसमें current, we know that the current here is 0. So definitely current has to flow through this diode D1 only. And that can happen only if this diode is forward biased. So हमने ये पूरा जो discussion किया था, we considered it to be forward biased, and this entire discussion happened. So यहाँ पे it is clearly written that in the positive half में जो मेरा output voltage है that is equivalent to 0. समझ में आ रहा है? Positive half में जो मेरा voltage आएगा that is equivalent to 0. Okay, so that was about the positive half. That was about the positive half. Nothing but positive half के अगर सिंपली बात करूँ, मेरा जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज सिंपली 0 वोल्ट्स। सो नाउ इट्स योर टर्न टू एनालाइज व्हाट हैपेंस इन द नेगेटिव हाफ। नेगेटिव हाफ में ये सर्किट कैसे बिहेव करेगा। ओके, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। यहाँ पे सर्किट इज कंप्लीट I know थोड़ा सा आप लोग को you might be feeling a bit confused, but एक बार इसको ध्यान से आप खुद एनालाइज करोगे, you will understand.
T1 and this is diode D2. This is the input what we are applying. This is connected to ground. Okay. So this is nothing but your modified precision rectifier. Okay, fine. So now let me ask something. कोई explain कर सकते हैं सर्किट के ऊपर जो चीजें एक्सप्लेन किया, क्या कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको कि अगर पॉजिटिव हाफ में सर्किट कैसे बिहेव करेगा? यस, कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस सर्किट? मुझे लग रहा है कि बहुत लोग कंफ्यूज हैं, फिर से रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए इस सर्किट में, प्लीज जस्ट फोकस हियर, ठीक है? सो फर्स्ट एजम्पशन जो होगा सिर्फ पॉजिटिव हाफ के लिए, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ के लिए। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज D1 इज ऑन। तो जब भी आप डिस्कशन स्टार्ट करेंगे D1 ऑन कंसीडर करेंगे, नेगेटिव हाफ हो या पॉजिटिव half हो, so this is the condition that will be there. D1 is on, and if D1 is on, that means it is a short circuit. ये short circuit है। I hope इसमें कोई confusion नहीं है। Please आप लोग respond करें, and फिर से मैं repeat कर रहा हूँ, so please do respond. इसमें कोई confusion है? D1 conduct कर रहा है मतलब इसको मैंने short circuit कर दिया है? No, sir. No, sir. Okay. So this is what you understood, ठीक है? One more thing, जब input applied नहीं होगा तो V naught क्या होगा? V naught will be equivalent to 0 volts. This is also understood. अब मुझे बताइए, isn't it looking like a negative feedback configuration? जब ये D1 conduct कर रहा है, जो assumption ने लिया है, क्या उसकी वजह से क्या आपको ये negative feedback configuration लग रहा है नहीं लग रहा है? ये output terminal of an op amp is connected to the negative terminal. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So can I say that it is a negative feedback configuration? अगर negative feedback configuration है, so can I apply the concept of virtual ground? Can I apply the concept of virtual ground? Virtual ground concept लगा सकते हैं यहाँ पे? Yes. Yes, sir. And virtual ground का मतलब क्या है? अगर ये 0 वोल्ट है, because this is connected to ground, तो यहाँ पे इस नोड पे वोल्टेज कितना हो गया? इस नोड पे हो गया वोल्टेज 0 वोल्ट्स। Yes. Hello. Yes, sir. Okay. तो अब मुझे बताइए, forget about everything, पहले इस रेजिस्टेंस को हम एलिमिनेट करते हैं। अब मुझे बताओ, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, तो क्या इस रेजिस्टर में कोई करंट फ्लो करेगा? क्या इस रेजिस्टर में कोई करंट फ्लो करेगा? नहीं फ्लो करेगा। So if I can get rid of this resistance also, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास। अगर मैं इस रेजिस्टेंस को हटा भी देता हूं, so it doesn't matter to me, because इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, nothing but open circuit ही है, सिंपली मैंने रेजिस्टेंस को हटा दिया तो बचा क्या मेरे पास? तो this is what I'm left out with now. Okay, 0 volts here. अब मुझे बताओ, this is a positive quantity and this is 0 volts, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? What about the current direction? क्या करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? नहीं बताइए एक बार। From V into 0. Yes. Will my current flow in this direction? Yes, sir. Okay, current will flow in this direction. चलो fine. अब एक और पॉइंट, यहाँ पे 0 वोल्ट्स है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है that is -0.7? Because डायोड के पास पोटेंशियल कितना होता है? 0.7 होता है। तो यहाँ पे अगर डायोड का जो एनोड है, डायोड का एनोड अगर 0 पे कनेक्टेड है, तो इस डायोड को कंडक्ट करने के लिए यहाँ पे वोल्टेज कितना होना चाहिए? -0.7 वोल्ट्स। यस, आया ना? Yes, sir. ओके, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे 0.7 है, -0.7 है। अब मुझे बताओ, जब ये -0.7 है और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो 0 है, क्या ये डायोड कंडक्ट करेगा D2? No, sir. Open circuit. No, sir. डायोड हो जाएगा ओपन सर्किट। नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग,
ये जो लोड रेजिस्टेंस है, क्या उसके अक्रॉस ये जो 0 वोल्ट है, क्या ये चेंज होने वाला है या 0 ही रहेगा? तो बस ये तो ओपन सर्किट हो गया, अभी ये 0 पोटेंशियल पे था, तो क्या ये 0 पोटेंशियल जाएगा या चेंज होने वाला है? ये विल दिस वोल्टेज चेंज? प्लीज ओनली 0 पे रहेगा। Yes, this will remain at 0 because जब ये open circuit हो जाएगा, this is not connected to any other circuit, this is not connected to any other supply, so that this potential is going to change. So obviously this will remain at 0, this will remain at 0 volts. So which is my output voltage? Nothing but output of a rectifier, which is 0. तो यहाँ पे in contrast to the circuit that we have studied earlier, जो हमने देखा था यहाँ पे half wave rectifier में देखा था, half wave rectifier में क्या था, जब पॉजिटिव हाफ था मुझे आउटपुट मिल रहा था, लेकिन इस सर्किट में, इस प्रेसिशन रेक्टिफायर में, जब आपके पास पॉजिटिव हाफ है, लेकिन आउटपुट क्या मिल रहा है आपको? 0 वोल्ट मिलेगा, 0 वोल्ट मिल रहा है यहाँ पे। इज दिस क्लियर? एंड दिस एंटायर थिंग इज पॉसिबल just because we consider this diode D1 to be on. तो क्या ये D1 ऑन है? हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? जो हमने assumption लिया है सही है या गलत है? By checking the current direction. अब ये पॉजिटिव है, ये 0 वोल्ट है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें। यस, अब करंट इस नोड में एंटर करने के बाद में इसके पास दो पाथ्स अवेलेबल है, या तो करंट ऐसे फ्लो करे या करंट ऐसे फ्लो करे। क्या ये करंट एग्जिस्ट करेगा? क्या ये करंट एग्जिस्ट करता है? This current does not exist. This current is always equivalent to 0. ये जो करंट होता है हमेशा 0 होता है, इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है। That means ये जितना भी करंट है वो पूरा करंट किसके थ्रू जाएगा? डायोड D1 के थ्रू जाएगा। एंड ये जो पूरा करंट अगर D1 के थ्रू जा रहा है, means that is only possible if my diode D1 is on, which was my initial assumption that I have taken. Is this clear? Hello. Yes, sir. करंट का डायरेक्शन नथिंग बट केसीएल तभी जस्टिफाई होगा, कब जस्टिफाई होगा? जब मेरा D1 ऑन है। अगर मेरा D1 ऑन नहीं है तो ये केसीएल जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड। तो करंट लीविंग द नोड, जो इसमें जो करंट जाएगा वो तो 0 है, मुझे पता है। सो डेफिनेटली करंट हैज टू फ्लो थ्रू दिस डायोड D1, व्हिच इज फॉलोइंग द कन्वेंशन ऑफ डायोड D1 व्हेन इट इज कंडक्टिंग। सो द कंक्लूजन इज फॉर द पॉजिटिव हाफ द आउटपुट विल बी इक्वल टू 0। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। प्लीज बता दीजिए अभी तो एटलीस्ट। Yes, sir. So that was about the positive half, and I want you people to analyze it for the negative half, and आप बताना नेक्स्ट क्लास में नेगेटिव हाफ में कैसा बिहेव करेगा सर्किट। सी assumption में पहले बता देता हूँ कि D1 को आप ऑन मान के ही चलोगे, एंड जैसे हम यहाँ पे देखा था कि अच्छा जो assumption हमने लिया था दैट इज जस्टिफाइड, तो उसी तरीके से वहां पर आप चेक करोगे कि जो जस्टिफिकेशन, जो assumption हम ले रहे हैं, इज इट गेटिंग जस्टिफाइड और नॉट। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू चेक। ओके, let me take your attendance.